So today we'll discuss about it is one important concept like the connected components and bi-connected components. So connectivity we are talking about like if we are having some kind of network and if we want to check like कि network कितना strong है तो जैसे कोई network इस तरह के होते हैं suppose we are depicting a network in the form of a graph like this A B and it is C suppose it is no इस तरह का नहीं पूरा different लेते हैं इसमें suppose the network is like this A B C और ये connected है आपस में फिर है इसके बाद D फिर है E F it is like this so दिस नेटवर्क इज अ वीक नेटवर्क कैसे वीक नेटवर्क का मीन्स अगर मैं इसमें ये पर्टिकुलर एज को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से तो ये नेटवर्क दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे so the network will be broken into two parts. So in this particular topic we will simply check like if a particular network is strong or weak network by finding the connected components in that particular network. So first of all, let's start what is the basically connected component. So if we are talking about the connectivity, then in an undirected graph means that every vertex can reach every other vertex via any path. So if the graph is not connected, the graph can be broken down into the connected component. And the other term is ये तो connectivity हो गया. Undirected graph की बात करें like we are having two vertices here. So we can say A is reachable from B and B is reachable from A. Okay, so this is the connectivity. एक टर्म और आती है इसमें इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बेसिकली सो दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इट सिंपली अप्लाइज इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ ओनली लाइक इसमें तो ये फुल्ली कनेक्टेड है बट इफ आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक वी आर टॉकिंग लाइक दिस ए और हमने डायरेक्टेड एज यहाँ पे ले ली देन बी इज कनेक्टेड फ्रॉम ए मीन्स वी कैन रीच फ्रॉम ए टू बी बट वी कैन नॉट गो फ्रॉम बी टू ए इट इज नॉट अ स्ट्रांगली कनेक्टेड तो स्ट्रांगली कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल डायरेक्टेड ग्राफ के लिए है and if we are talking about the connectivity then we simply call talk about the this undirected graph और यहाँ पे जो हम examples लेंगे सारे we will take all the undirected graphs only so a directed graph is strongly connected if there is a directed path from any vertex to every other vertex and it is same as connectivity in the undirected graph so strong connectivity it will be the point for the directed graph only and the connectivity it will be it is same both are same thing okay so this is same as connectivity and undirected graph the only difference being strong connectivity applies to directed graph and there should be directed path instead of just path okay so link connected component like connected component a directed graph can be broken down into strongly connected component तो ये जो connected component का term है ये केवल undirected graph के लिए है अगर हम directed graph की बात करेंगे तो वहां पर जो term आएगा that will be strongly connected component ठीक है so first of all what is the connected component is the connected component of an undirected graph is the maximal connected subgraph means अगर मैं एक connected undirected graph को मैं different parts में break कर दूं और जो मेरे को different सब graph मिलेंगे if those are the connected and that those must be connected then only we say like that particular graph is having connected component so a tree is a graph yes tree can be a graph but reverse is not possible because the tree doesn't contain a cycle so a tree is a graph that is connected and acyclic a directed graph is strongly connected if there is a directed path from vi to vj and also the reverse will be vj to vi तो और थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं हम पहले like okay so these are the connected component like means I can reach from 0 to 2 0 to 3 0 to 1 1 to 0 1 to 2 मीन्स सारे जो नोड्स हैं सारे आपस में कनेक्टेड हैं 4 5 6 7 ये हमारा है एक कनेक्टेड कंपोनेंट H2 इसमें भी सारे वर्टेक्स जो हैं आपस में कनेक्टेड है ठीक है सो अगर ये सपोज इस तरह से था पहले it was a connected graph and after removing this particular edge we simply get two connected components this one and this one directed graph like this is the case
So we can go from 0 to 1 and 1 to 2, but we cannot go from 2 to 1 or 2 to 0. So it is not strongly connected. But this one is strongly connected. Means we can go from 0 to 1 or 1 to 0 as well. So first of all, the strong connectivity and some of the equivalence relation means if there is a strong connectivity, then that must satisfy some of the property. So in undirected graph, two vertices are connected if they have a path connecting them. So in this way, there is a connectivity in an undirected graph. But how should we define connected in the terms of directed graph? Means we can simply take the strong connectivity concept there. So we say that a vertex A is strongly connected to B if there are two paths, means one from A to B, another from B to A. So we allow the two paths to share vertices or even to share edges. So we will use this like A is connected with B as shorthand for A is strongly connected to B. Okay, so we'll allow very short path from one vertex and no edges so that any vertex is strongly connected to itself. So means if we are talking about A, तो ये जो properties है reflexive बताता हूँ, चलो बाद में बताता हूँ उसे. So that every vertex is strongly connected to itself. So means if we are talking about the relations, so it is another word for a collection of pairs of the object. So we can think of a relation as being a directed graph, but not the same as one we are using to define the connectivity. So an equivalence relation, A is equivalently related with B, is a relation that satisfies these three simple properties. The first property is the reflexive property, means for all A, if we are talking about the A, so A is an equivalence relation with itself. It means any vertex is strongly connected to itself by definition. If we are having a single vertex like this, then it will be strongly connected with this. तो ये हम by default मान के चलेंगे इसमें. Next one is a symmetric property. So if A is in equivalent relation with B, then B must be in equivalent relation with B. So for strong connectivity, this follows from the symmetry of the definition, like the same two paths, one from A to B, another from B to A. So that shows like A is strongly connected with B. Looked at the other end on the other order, like B is strongly connected to A. So this is a symmetric property. So if we are talking about like this, so we can refer this thing like this: A to B and B to A. A is strongly connected to B and B is strongly connected to A. The third property, that is the transitive property. So it is ये उसी तरह से है, like A is in equivalence relation with B and B is in equivalence relation with C. Then finally A it will be in equivalence relation with C. So A is in relation with B and B in relation with D. So A will be relation with the C. So this will be applied also in that in terms of the strongly connectivity. So if A is strongly connected to B and B is strongly connected to C, then we have four paths like AB, BA, BC, CB, and this simply tells us like the A will be strongly connected with C. अगर उसको हम थोड़ा सा और expand करके show करें, then we will find out like A is strongly connected to C. So these three properties are true in terms of the strong connectivity or the equivalence relation both. तो अभी जब यहाँ पे हम connected components study करेंगे, then we will simply refer these properties also. Now this is the algorithm for finding the connected component. If we want to find out the connected component in a particular graph, या देखें उसमें कितने connected components हैं. Like जैसे मैं बात करूँ, ये एक graph है मेरे पास, A, it is B, it is C. So this graph contains only a one connected component. ठीक है, अगर मैं suppose हमारा जो पूरा graph है, it also contains like E and it is F. Then this graph contains two strongly connected components. Suppose मेरे पास एक और node है, it is EFG, or suppose it is H. Now this graph, जो complete पूरा अगर एक ही graph है, then it is having three connected components. So this algorithm will find out the total number of connected component in this particular graph. ठीक है, तो process क्या है इसका? We will utilize the depth first search algorithm here.
and we will simply modify that a little. Let's suppose we are given an undirected graph G with a set of vertices and set of AJ. So number of connected components we need to find out. That will be the result. So first of all, what we will use a variable that is the component underscore count. So ये क्या करेगा? Finally, the value of this variable will tell us like how many total connected components are there. ठीक है, तो इसको प्रोसेस क्या है इसका? We will simply first of all initialize all the vertices. So we use this variable visited k. तो ये क्या कंटेन करेगा कि हमने वो पर्टिकुलर वर्टेक्स विजिट कर लिया है या नहीं किया है. ठीक है, तो हर एक वर्टेक्स के लिए हम वी इनिशियलाइज दिस पर्टिकुलर array variable visited k true false, meaning initially no node is visited. So this particular loop will initialize this variable false for all the vertices. Now for every vertex, so every vertex k belong to the set of V. What we will do, we simply visited if check like if the k is visited or not. If the visited k is false, then we call the DFS algorithm for that particular vertex. Means from that particular vertex. जैसे क्या होगा, ये मेरे पास एक ग्राफ है A, B, C एंड D, ये पूरा ही ग्राफ है E एंड F. ठीक है, तो इनिशियली तो सबके लिए विजिटेड का स्टेटस फॉल्स है. सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसका स्टेटस फॉल्स है, तो क्या करेंगे, विल कॉल द DFS एल्गोरिथम फॉर दिस वर्टेक्स. और क्या करेंगे उसके बाद, जब ये वर्टेक्स के लिए DFS एल्गोरिथम कॉल होगी तो उसके अंदर ये सारे के सारे वर्टेक्स जो होंगे हमारे, वो ये सारे के सारे वर्टेक्सेस को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे इनका स्टेटस विजिटेड का. और हमारा ये जो कंपोनेंट काउंट है इसको हम +1 कर देंगे. इनिशियली इट वाज 0, देन इट विल बी इंक्रीज टू 1. तो जैसे ए से स्टार्ट होगा A B C, और जैसे ही C तक ओवर हो जाएगा, मीन्स ये सारे के सारे वर्टेक्स जिनका स्टेटस ट्रू हो जाएगा. ट्रू मीन्स किसका, विजिटेड वर्टेक्स का, और ये कंपोनेंट हमारा पूरा विजिट हो जाएगा. तो कंपोनेंट काउंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट अगेन वी विल फाइंड आउट अनदर वर्टेक्स विच इज नॉट विजिटेड. तो सपोज वो हमको मिल गया D या E, जो भी है इनमें से मिले. So we'll start from D and we simply visit each vertex of this particular component. तो जब ये component पूरा visit हो जाएगा, then we again increase the component count. So for this particular graph, the component count of the connected component it will be 2. ठीक है, तो हर एक separate component के लिए जब भी वो पूरा visit हो जाएगा, then this component count will be increased. तो दिस इज द प्रोसीजर DFSVK जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. तो जब ये k के लिए कॉल होगा तो क्या करेंगे, एक तो k का स्टेटस हम क्या कर देंगे, विजिटेड कर देंगे. और उसके जो भी नेबर नोड्स हैं उनके लिए, जो भी रीचेबल नोड्स हैं उन सारे नोड्स के लिए, अगर उनमें से किसी का विजिटेड स्टेट फॉल्स है तो उसके लिए हम भी सेपरेटली फिर इसको कॉल करेंगे. तो बेसिकली जब ये a के लिए कॉल होगा तो इसके नियर वाले जो सारे नोड्स हैं उनके लिए भी इसके अंदर रिकर्सिवली कॉल होगा, और इन सबका स्टेटस 1 होता चला जाएगा. एक नोड से स्टार्ट होगा और इसके सारे नेबर नोड जब तक विजिट नहीं हो जाएंगे तब तक ये DFS कॉल होगा. और जैसे ही ये सारे विजिट हो जाएंगे, देन ये यहाँ पे एल्गोरिथम या कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और वी विल सिंपली इंक्रीज द कंपोनेंट काउंट. और हर बार रिपीट होता रहेगा, मीन्स इट विल एग्जीक्यूट फॉर एवरी कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ, और वी कैन से कनेक्टेड कंपोनेंट. ठीक है, सो if we are talking about the complexity of this particular algorithm, then using the adjacency list, it will be O of n plus E, and if we are using the adjacency matrix, then it will be O of n square. Now the next important thing in the connectivity, it is the articulation point. So if we simply want to understand the articulation point, देन ये एक ऐसा वर्टेक्स होता है ग्राफ में, अगर उसमें उस वर्टेक्स को ग्राफ में से रिमूव कर दें तो हमारा जो ग्राफ है वो मोर देन 1 कनेक्टेड कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है. जैसे मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में लूँ, तो सपोज इफ आई एम रिमूविंग दिस वर्टेक्स, जैसे मैंने इसको यहाँ हटाया, तो ये हटाने के बाद क्या होगा, ये एज भी यहाँ से हट जाएगी, ये एज भी हट जाएगी, ये एज भी हट जाएगी, और हमारा ग्राफ क्या होगा यहाँ पे 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स में. इन दिस वे इट विल बी डिवाइडेड. So in a graph, a vertex is called an articulation point if removing it and all the edges associated with it results in the increase of the number of connected component in the graph. ठीक है, तो इनिशियली इसमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट थे, ये खुद एक कनेक्टेड कंपोनेंट था, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया
तो ये पूरा यहाँ से सारी एजेस हट गई, तो हमारे को ग्राफ में दो कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गए। तो दिस इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट। एंड अगर किसी पर्टिकुलर ग्राफ में आर्टिकुलेशन पॉइंट ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ अ वेरी वीक ग्राफ। So if in the above graph, vertex 1 and all the edges associated with it, that is the 1, 0, 1, 2, 1, 3 are removed, then there will be no path to reach any of the vertices 2, 3, 4 from the vertex 0 and 5. Okay, so that means the graph will split into two separate components, one consisting of the vertices 0 and 5 and other one consisting of the vertices 2, 3, 4, like this one 0 and 5 and 2, 3, 4. ये हमारा, अब इसको उस वर्टेक्स को रिमूव करने के बाद दिस विल बी द सिनेरियो। तो दिस इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट। ओके, अच्छा यहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकुलेशन पॉइंट की, देन वन कैन बी एन आर्टिकुलेशन पॉइंट। इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर ये चाहिए ये रिमूव होता है तो इससे एसोसिएटेड सारी एज भी रिमूव होंगी। जीरो कैन बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट। अगर मैं जीरो को यहाँ से हटाता हूँ तो देखो एक कनेक्टेड कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, ओके, इफ यू आर सिंपली रिमूविंग दिस टू, अगर मैं टू को हटा देता हूँ तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिविटी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि 4 से 1 जाना है तो 2 के थ्रू ही जाए। अगर इसको रिमूव कर देंगे देन इन दैट केस वी कैन आइदर गो फ्रॉम 3, तो 4, 3, 1, तो कनेक्टिविटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। 2 कैन नॉट बी एन आर्टिकुलेशन पॉइंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4, देन रिमूविंग द 4, इसको रिमूव करने के बाद भी ये ग्राफ हमारा कनेक्टेड फॉर्म में रहेगा। तो अगर किसी भी वर्टेक्स को रिमूव करने के बाद ग्राफ में कनेक्टिविटी रहती है, एग्जिस्ट करती है, देन दैट पर्टिकुलर नोड विल नॉट बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट। बट अगर उसको रिमूव करने के बाद ग्राफ टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टू कनेक्टेड कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, देन दैट विल बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट। 3 भी नहीं हो सकता आर्टिकुलेशन पॉइंट, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 को अगर हम रिमूव ही कर दूंगा, जिससे मैंने इसको हटा दिया, तो अब भी ये कनेक्टेड फॉर्म में है। 1 can be possible or 0 can be possible, the articulation point. So likewise, removing the vertex 0 will also disconnect the vertex 5 from all the other vertices, and the given graph has two articulation points 0 and 1. Okay. So articulation point क्या represent करता है? So articulation point represents the vulnerabilities in a network. Means उसमें क्या drawbacks हैं? So in order to find out all the articulation point in a given graph, the brute force approach is to check for every vertex. हम जैसे randomly अभी हमने चेक किया, brute force approach अप्लाई की हर एक vertex के लिए, इसके लिए चेक किया ये मिल गया, इसके लिए किया ये मिल गया, इसके लिए नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, so the brute force approach is to check for every vertex if it is an articulation point or not. So by removing it and then counting the number of connected component in the graph, if the number of component increases, then the vertex under consideration is an articulation point, otherwise not. अगर उस node को हटाने के बाद connected component increase हो रहे हैं, then we can simply thumb that vertex as the articulation point, otherwise that is not the articulation point. So here are some important points related to the articulation point, like वो जो vertex है वो क्या हो तो उसको हम articulation point बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 3 केसेज हैं। फर्स्ट तो है अगर वो वर्टेक्स जो है वो इंटरनल नोड हो तो क्या सिनेरियो हो सकता है। दूसरा अगर वो लीफ नोड हो तो क्या सिनेरियो हो सकता है। तीसरा अगर वो रूट नोड हो तो क्या सिनेरियो हो सकता है, कि हम कह सकते हैं कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एन इंटरनल वर्टेक्स बट दैट शुड नॉट बी अ लीफ नोड। लीफ नोड क्या होगा, उसके बाद और कोई वर्टेक्स उससे कनेक्टेड नहीं है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो मैं दिस कैन बी द लीफ नोड, जैसे ट्री के अंदर होता है दिस कैन बी द लीफ नोड, मीन्स उसके आगे वो फर्दर किसी और से कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वी नीड टू कंसिडर लाइक दैट वर्टेक्स इज द इंटरनल नोड। तो ये इस तरह से है, जैसे इसके ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से और पर्टिकुलर वर्टेसेस हैं। तो दिस इज सम काइंड ऑफ इंटरनल नोड, मीन्स इट इज नॉट अ लीफ नोड एंड इट इज नॉट अ रूट नोड ऑल्सो। ओके, so let v1 v2 vk denote the children of u, this is the internal node, और ये हो गया v1 v2 vk। ठीक है, and denote the children of u, and each is the root of a subtree of dfs. So if for some child there is no back edge from any node in this subtree,
going to proper ancestor of u, then u is an articulation point. So the meaning of this particular thing is same like, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स ड्रॉ कर देता हूँ, तो अभी क्या है, ये डॉटेड एजेस को भूल जाओ कि कैसे भी कनेक्ट हो रही हैं. सपोज इन दिस सिनेरियो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वन, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये जो तीनों वर्टिसेज हैं इनकी कनेक्टिविटी इसके थ्रू थी ऊपर वाले पूरे ग्राफ के साथ में, लाइक दिस, जैसा भी कुछ अगर जो भी कनेक्टिविटी इनमें है यहाँ पे. तो अगर ये हटता है तो ये पूरा जो ग्राफ है हमारा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में. फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस. ठीक है. बट इफ इट इज एन इंटरनल नोड और यहाँ पर जो इसके वर्टिसेज हैं उन वर्टिसेज से किसी अदर एंसेस्टर नोड के लिए अगर डायरेक्ट एज है, जैसे मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ, लाइक आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस वन विद दिस ऑल्सो. ठीक है. और ये आपस में कनेक्टेड हैं, लाइक सपोज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस वन एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस वन. तो अगर इसको हम रिमूव भी करते हैं इस इंटरनल नोड को, तो करने के बाद भी हमारे पास ग्राफ में कनेक्टिविटी रहेगी. कनेक्टिविटी कहाँ से रहेगी? इनके थ्रू ऊपर वाले वर्टिसेस से रहेगी. ठीक है. तो अगर वो ऐसा इंटरनल नोड है कि जिसके चाइल्ड नोड हैं, उन चाइल्ड नोड की एंसेस्टर नोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लाइक इफ फॉर सम चाइल्ड देयर इज नो बैक एज. अब बैक एज, फॉरवर्ड एज और क्रॉस एज का कॉन्सेप्ट मैं आगे बता दूंगा क्या है. तो बैक एज ये हो गया लाइक वी आर कमिंग टू हियर एंड वी कैन अगेन गो बैक टू एनी प्रीवियस नोड, सो दैट इज द बैक एज. So if for some child of that internal node, if there is no back edge from any node in this subtree going to a proper ancestor for u, then u is an articulation point. तो इसको रिमूव करने के बाद ये हमारा जो ग्राफ है मल्टीपल या मोर देन वन कनेक्टेड कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. So we can understand it like this. So in this case, suppose I am just removing this one, जैसे मैं इसको हटाता भी हूँ तो भी हमारे क्या है, ये जो वर्टिसेज हैं ये ऊपर एंसेस्टर नोड से कनेक्टेड है. तो इन दिस सिनेरियो द u will not be an articulation point, क्योंकि ग्राफ में कनेक्टिविटी रहेगी. बट इन दिस केस u is the articulation point, कि यहाँ पे ये वर्टिसेज जो हैं किसी भी एंसेस्टर नोड से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है. बट इन दिस these all the vertices are connected with the ancestor node by some other back edges, so this u will not be the internal node. So these can be the cases of the internal node for being an articulation point. Now what if it is a leaf node? तो देखो leaf node तो articulation point possible ही नहीं है. ठीक है. जैसे मैं इसी में बात करूं, तो जैसे ये leaf node है, तो ये अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तो लीफ है तो इसके चाइल्ड तो कोई होना नहीं है, तो ये आर्टिकुलेशन पॉइंट हो ही नहीं सकता कि उसको रिमूव करने के बाद ये ग्राफ कनेक्टेड फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होगी. ठीक है. तो अ लीफ इज नेवर एन आर्टिकुलेशन पॉइंट बिकॉज अ लीफ हैज नो सब ट्री. नाउ व्हाट अबाउट द रूट? तो द रूट इज एन आर्टिकुलेशन पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज मोर देन वन चिल्ड्रन नोड. अगर मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ है, सपोज इट इज लाइक दिस, और ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, तो इफ इट इज द रूट नोड, इस केस में क्या होगा, इसका रिमूवल ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, एक ही पार्ट रहेगा अभी भी. बट अगर सीन इस तरह से है, लाइक दिस इज कनेक्टेड विद दिस एंड वी आर हैविंग अनदर ग्राफ लाइक दिस, तो इस पर्टिकुलर, सपोज ये रूट नोड है, तो इस रूट नोड के कितने चाइल्ड नोड हो गए? मोर देन वन. तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो क्या होगा? इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू कनेक्टेड कंपोनेंट्स. तो रूट नोड के केस में वी आर हैविंग टू डेफिनेशन, like if the root is an articulation point if and only if it has two or more children. ठीक है. and root has no proper ancestor node and there are no cross edges in between the subtrees. अब इसका क्रॉस एज और बैक एज का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगा कि क्या होती हैं. तो these are the three types of edges: forward edge, back edge and cross edge. The first one is the forward edge. So it is an edge u comma v such that v is descendant but not part of the DFS tree. तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा DFS ट्री हो गया. जैसे हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च में सपोज ये ग्राफ गिवन था, उस ग्राफ को हमने क्या किया, इस तरह से था ये ग्राफ,
Just assume like these all are the ages here. जी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था when we were discussing about the depth first search. So in this depth first search, ये जो DFS का जो हमारे को ट्री मिलेगा, it is like this. तो ये जो रेड एजेस हैं, these are the part of the DFS tree and these dotted edges are not part of the DFS tree. ठीक है. तो forward edge क्या होगी? It is an edge u comma v such that V is descendant but not part of the tree. Like this ux is the forward edge. तो ये x जो हुआ डिसेंडेंट हुआ u का, ठीक है, बट ये जो एज से कनेक्ट हो रहे हैं ये हमारे DFS ट्री का पार्ट नहीं है. तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होता है देन दैट इज द फॉरवर्ड एज. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक एज. तो इट इज एन एज u comma v such that V is ancestor of age U but not part of the DFS tree. So this age, this can be the, we can say the back age means X का ancestor V है, but ये जो age है जिससे दोनों connected हैं ये DFS tree का part नहीं है. So this is the back age means we can just reach from here to here again. ठीक. Now that cross age, so it is an edge which connect two nodes such that they do not have any ancestor and a descendant relationship between them. So this is the cross edge because ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर ये जब इसका हमने DFS ट्री निकाला था तो ये DFS ट्री हो गया और एक ये वाला हो गया बिकॉज ये यहाँ पे हमको यहाँ से यहाँ पहुँचने का कोई मतलब प्रॉपर वे नहीं था इसमें. ठीक है. सो this will be the cross edge. So it is the edge which connect two nodes such that they do not have any ancestor and a descendant relationship. इनके बीच में कोई ancestor और descendant का relationship नहीं है. So these are the three types of edges: forward edge, back edge and cross edge. So this definition will help us to find the articulation point in a particular graph. ठीक है. So this is the algorithm for finding the articulation point. So in the step 1 we simply find out the depth first spanning tree. अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी यहाँ पे? So this will be used here for finding the discovery time of the vertices. तो ये यहाँ पे जो हमारे vertices होंगे उन सारे vertices में जो इसका discovery time होगा वो find out करने में हमारी help करेगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिस्कवरी टाइम फाइंड आउट करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड इट बाय दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. तो अगर आप विजुअली देखें इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट, तो जैसे इस ग्राफ के लिए हम आर्टिकुलेशन पॉइंट की बात करें देन 0 कैन नॉट बी आर्टिकुलेशन पॉइंट बिकॉज इट इज द लीफ. और ये इंटरनल नोड हो गया. अच्छा, 0 को हटाता हूँ तो ये हमारे को यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा, दो कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होंगे. 1 को रिमूव करते हैं, लेट्स सपोज वी आर रिमूविंग दिस 1, तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये वाला हो जाएगा. सो 1 कैन बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट. 2 कैन नॉट बी क्योंकि इसको हटने के बाद भी ग्राफ कनेक्टेड फॉर्म में है. 4 कैन नॉट बी, इसको हटने के बाद भी ग्राफ कनेक्टेड फॉर्म में है. 3 कैन बी, तो इसको रिमूव करते हैं तो ये ग्राफ यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस. ओके. 5 इट कैन ऑल्सो बी, ये भी एक आर्टिकुलेशन पॉइंट पॉसिबल है कि यहाँ पे ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ओके. नाउ 7 कैन बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट. रिमूविंग फ्रॉम हियर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. एंड 6 कैन नॉट बी क्योंकि इसको रिमूव करते हैं तो भी ग्राफ यहाँ पे कनेक्टेड फॉर्म में है. तो इस ग्राफ के लिए हमारे पास 4 आर्टिकुलेशन पॉइंट हैं, 1, 3, 5 एंड 7. ठीक है. So this was the algorithm for finding the articulation point. So first of all, we will utilize the DFS algorithm that was for depth first search traversal. So we will utilize that algorithm for finding the DFS spanning tree, or we can say depth first spanning tree. And the one important feature of that depth first spanning tree, that was the depth first number, or we can say the discovery number in that particular tree. So that will be utilized for finding the articulation points. Okay, so after finding the first tab, after finding the DFS tree T for the graph G, the next tab will be we simply add the back edges in the T. So if there are some back edges from the child node to the ancestor node, then we simply add them. तो मैं बता दूंगा अभी कैसे होगा ये. Now this step number 3 will be utilized to calculate a value, that is the value in some books it is denoted by LOW, low. Okay,
एंड इन सम बुक्स इट इज डिनोटेड बाय एल आई। कुछ बुक्स में तो क्या है, इसको एल आई से डिनोट कर रखा है, कुछ बुक्स में इसको लो ऑफ आई से डिनोट कर रखा है। तो बेसिकली वी सिंपली whenever just we are checking कि a particular node is a articulation point or node, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे उसके लो की वैल्यू क्या है। अगर उसके लो की वैल्यू उस पर्टिकुलर नोड के डिस्कवरी टाइम से ज़्यादा है, देन दैट कैन बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट, मीन्स वहाँ पर फिर कनेक्टिविटी इशू होगा। और अगर किसी पर्टिकुलर नोड के चाइल्ड की लो की वैल्यू, ये मैं बताता हूँ, लो अभी कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, उस नोड के DFN से कम है, इट मीन्स दैट कैन बी द आर्टिकुलेशन, सॉरी दैट कैन नॉट बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट, मीन्स वहाँ पर बैक एजेस पॉसिबल हैं, और बैक एजेस पॉसिबल हैं तो कनेक्टिविटी इशू आफ्टर रिमूविंग दैट वर्टेक्स विल नॉट अकर। So by using this third step, we will find out the value of this DFN and low, and the step 4 by utilizing these value means ये हमको condition check करनी है हर एक vertex के लिए। तो अगर ये condition true होती है किसी vertex के लिए तो articulation point होगा, otherwise articulation point नहीं होगा। ठीक है, let's see in this. Suppose we are having this particular graph and now we want to find out the articulation point. तो मैनुअली जब हमने देखा था इसमें, so we are having 4 articulation point, like this one is the articulation point। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से, मीन्स इसका हटने के बाद this one will be the one connected component and this one be the other connected component। so this is the one। next one is 0 नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 कैन बी पॉसिबल। अगर इसको रिमूव करते हैं then graph will be broken up these two connected components। 5 भी हो सकता है, 5 को रिमूव करते हैं तो भी ग्राफ 2 कनेक्टेड कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। 6 नहीं हो सकता, 7 को करते हैं तो भी ग्राफ 2 कनेक्टेड कंपोनेंट में डिवाइड होगा, और 8 और 9 नहीं हो सकते। ठीक है, तो लीफ नोड जो है वो तो हो ही नहीं सकते, लाइक जैसे ये लीफ नोड है, मतलब इसके फर्दर कोई आगे कनेक्टिविटी नहीं है। तो 0, 8, 9, 6 दीज कैन नॉट बी द कनेक्टेड कंपोनेंट आर्टिकुलेशन पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास इस ग्राफ में जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं वो है 1, 3, 5 एंड 7। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड आउट द DFS ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो DFS ट्री में क्या है, जस्ट रिकॉल दैट इन द डेप्थ फर्स्ट ट्री, जब भी कोई इसमें 2 हमारे पास टाइम स्टैम्प थे, एक तो डिस्कवरी टाइम था और एक उसके अंदर फिनिश टाइम था। तो डिस्कवरी टाइम तो ये था कि कौन सा नोड कब डिस्कवर हुआ, तो हम उसमें टाइम स्टैम्प को वहाँ सेट कर देते थे, तो वो टाइम स्टैम्प हमारा यूज में आता था ट्रैवर्सल में। और दूसरा था फिनिश टाइम, बट यहाँ पे हम केवल यूज में लेंगे, यूटिलाइज करेंगे द डिस्कवरी टाइम। ठीक है, तो दिस कैन बी द डिस्कवरी टाइम। जैसे मैं यहाँ थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, नोड नंबर 3, वो कहीं से भी कर सकते हैं, बट अज्यूम लाइक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो सपोज द डिस्कवरी टाइम ऑफ दिस नोड इज 0। तो ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ, तो इसका डिस्कवरी टाइम क्या होगा, 0। अब हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन कि कौन से हम नोड पर जा रहे हैं। फाइनल आंसर वही आना है लास्ट में, बट डिस्कवरी टाइम कैन बी डिफर इन दैट सिचुएशन। तो डिस्कवरी टाइम ऑफ 3 इज 0, डिस्कवरी टाइम ऑफ 4 इज इट विल बी 1। सपोज ये 3 के बाद हमने 4 चूज किया, 4 के बाद वी आर हैविंग दिस 2, इसका 2 हो गया, 1 का यहाँ पे डिस्कवरी टाइम 3 हो गया, 0 का डिस्कवरी टाइम 4 हो गया। तो 3 का लेफ्ट साइड में जो नोड्स हैं सारे डिस्कवर हो गए। 3 के राइट साइड में आते हैं तो सपोज इसका डिस्कवरी टाइम हो गया 5। यहाँ भी ऑप्शंस हैं, वी कैन अदर गो टू 6 और 7। तो सपोज इसका हो गया 6, इसका हो गया 7। ठीक है, सपोज इसका हो गया 8, इसका हो गया 9। अब ये रिवर्स भी हो सकता है, सपोज इसका 9 हो, इसका 8 हो। तो ये इनका डिस्कवरी टाइम्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में हम इनको अरेंज कर देते हैं। लाइक अरेंजिंग इन द प्रॉपर वे मीन्स इन दिस वे, लाइक जो इसका स्पैनिंग DFS ट्री बनेगा, वो DFS ट्री तो इस तरह बनेगा, जैसे हमने 3 से स्टार्ट किया, तो 3 के बाद यहाँ 4 था, 4 के बाद यहाँ 2 था, 2 के बाद यहाँ 1 था। ठीक है, और इधर आ गया हमारे पास 5, 5 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 7, 7 के बाद सपोज यहाँ पे आ गया, ये आ गया 9, ये आ गया 8। जो इनका डिस्कवरी टाइम है उस वे में इनको अरेंज किया मैंने। तो 3 का डिस्कवरी टाइम 0, इसका 1, इसका 2, इसका 1 मिनट 0, 1,
कोई मिसिंग है इसके अंदर बीच में, 3 4 2 1, अच्छा 0 मिसिंग है यहाँ पे, इट इज 1 और फिर 0, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, सो 0 1 2 और ये इसका 3, इसका 4, इसका डिस्कवरी टाइम 5 6 7 8 9। तो ये DFS ट्री फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, वी सिंपली ऐड सम ऑफ द बैक एजेस, अगर कोई बैक एज है तो मीन जैसे ये रूट है या कोई अपर नोड्स के लिए लोअर नोड से कोई बैक एज आ रही हैं तो उनको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इन दिस पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर नोड 1, तो दिस ये नोड 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से कनेक्ट हो रहा है, सो वी सिंपली ऐड एन एज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे 5 to 6 है, 5 to 7 है, और 7 भी 5 से आ रहा है, तो कनेक्टिविटी तो हमारी ऐसे आ रही है यहाँ पे, पर 7 to 5 भी एक हमारे पास एज आ रही है, सो वी विल कनेक्ट इट लाइक दिस। ठीक है, सो और कुछ इसमें बैक एजेस का नहीं है, ये एज नहीं थी जो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अच्छा, अब हमने क्या किया है, इसके अंदर हमारे पास सारे वर्टिसेज हैं और सारे वर्टिसेज का DFN वैल्यू है, तो ये DFN वैल्यू को we can write it like this is the DFN, it is depth first number, it is depth first number, और in other words we can say it is the discovery time, ये नोड कब डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो अब जब ये ट्री फाइंड आउट हो गया, so let's move to the next diagram। ये हमारे पास ट्री फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे हमने बैक एज कनेक्ट कर दी है, तो नाउ वी विल जस्ट चेक हियर this one। So we simply create this table here. These are the vertices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and ये इनकी DFN वैल्यू हो गई। जैसे 0 नोड का DFN है 4, 1 का है 3, 2 का है 1, 2 का है 2 और 3 का है 0, 4 का है 1। ठीक है, ऐसे ही 5, 6 का 6, 7 का 7, 9 का 8 और 8 का 9। तो ये सारे डिस्कवरी टाइम हमने यहाँ मेंशन कर दिए। अब हमको हर एक नोड के लिए लो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लो यहाँ ये गारंटी करेगा कि अगर लो की वैल्यू किसी भी नोड के चाइल्ड के लो की वैल्यू अगर उस नोड के DFN से ज़्यादा है तो वो नोड आर्टिकुलेशन पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर एक कोई ना कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल है टू द एंसेस्टर नोड। सॉरी, कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है तो अगर हम नोड को हटा देते हैं तो पूरा का पूरा जो ट्री है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर किसी भी नोड के लो की वैल्यू उस पर्टिकुलर नोड के DFN से कम है, ठीक है, कम होगी, इसका मतलब वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा, कोई ना कोई कनेक्टिविटी वहाँ पे जा रही होगी। तो पहले लो कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग द लो वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला, वी विल चेक फॉर 3 वैल्यू, जो इन तीनों में से जो मिनिमम होगी उस नोड के लिए वो उस नोड का आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा। लाइक वी विल चेक हियर फॉर, जैसे यू के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं लो, तो उस यू का DFN डेप्थ फर्स्ट नंबर, ठीक है, या फिर उसके चाइल्ड के लो की वैल्यू, यू के चाइल्ड के लो की वैल्यू, या अगर उस यू से कोई बैकेज जा रही है ऊपर तो जिस नोड तक जा रही है उस नोड के DFN की वैल्यू। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लो फॉर दैट पर्टिकुलर नोड। So low for each vertex of G is such that like low of U is the lowest depth first number that we can reach from U using a path of descendant followed by at most one backage। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी नोड का जब लो कैलकुलेट करेंगे देन it will be the minimum of DFN of that particular node or low value of its child node और DFN of, अगर वहां से कोई बैक के जा रही है उस नोड से एंसेस्टर नोड के लिए तो उसका DFN। तो तीनों में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द लीव नोड। तो लीव नोड की बात करें, जैसे हम इन लीव नोड के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो लीव नोड का तो कोई चाइल्ड नोड होता ही नहीं है। तो जैसे ये फॉर्मूला है यहाँ पे, इसका चाइल्ड नोड तो कोई होगा नहीं, बैकेज हम केवल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और जब चाइल्ड नोड ही नहीं है और सपोज इट मे बी पॉसिबल लाइक देयर इज एन बैकेज हियर, तो या इस केस में देखें
यहाँ पे हर एक लीफ नोड, जैसे 3 लीफ नोड हैं, तीनों लीफ नोड के जो लो की वैल्यू होगी वो इनका डीएफएन नंबर ही होगी, चाइल्ड तो कोई है नहीं, बैक एज भी नहीं जा रही है, तो एक चीज बची हमारे पास, दैट इज द डीएफएन। तो फॉर 0, फॉर 8 एंड फॉर 9 दिस इज द वैल्यू ऑफ द लो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जिनका डीएफएन होगा वही होगा। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया 0 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। ठीक, तो मूव अपवर्ड इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो लेट फॉर 1, अच्छा 1 के लिए देखें तो 1 का देखो, वैसे हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो डी एफ एन ऑफ 1, ये हो गया हमारे पास 3, और 1 का चाइल्ड क्या है 4, सॉरी 0, तो लो ऑफ जीरो क्या है 4, और यहाँ से एक बैकेज आ रही है ऊपर एंसेस्टर नोड की तरफ। ठीक है, और इस एंसेस्टर नोड का डीएफएन क्या है, ये इसका डीएफएन जैसे 3 है तो डीएफएन इसका हो गया 0। तो 3 वैल्यू हो गई ये वाली। ठीक है, एक तो 1 का डीएफएन हो गया, 1 के चाइल्ड का लो का वैल्यू हो गया, ये लो यहाँ टेबल में से चेक करना, और 1 से एक बैकेज जा रही है टू द एंसेस्टर नोड, तो जिस नोड पे जा रही है उस नोड का डीएफएन का वैल्यू। तो आउट ऑफ दीज 3 वैल्यूज this one is the minimum. Okay, so 0, so for this one the value of the low will be 0. ठीक है, for 1 the value of low will be 0, like this. ऐसे ही हम बाकी नोड्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। so 1 the ये 1 का हो गया, then just move outward। 2 के लिए देखें तो for 2 का DFN तो है हमारे पास, DFN of 2 it is 2, इसका चाइल्ड का लो ऑफ 1 इट इज 0, और कोई बैकेज का कौन है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 वैल्यू होगी, दोनों में मिनिमम वैल्यू ये हो गई। तो 2 के लिए भी लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 0। नाउ मूव फॉरवर्ड हियर, चेक फॉर द 4 का देखो 4 से बैकेज तो नहीं है, 4 का डीएफएन है, डीएफएन ऑफ 4 इट इज 1, और 4 के चाइल्ड क्या है 2, और 2 का लो का वैल्यू क्या है, लो ऑफ 2 ये है 0, दोनों में मिनिमम 0। तो 2 का भी हो गया, 4 का भी लो का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही नाउ चेक फॉर दिस 3, पर 3 को चेक करने से पहले इसके राइट साइड वाली ट्री को भी हम प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दिस राइट साइड ट्री 9 और 8 के लिए हमने देख लिया। नाउ वी कैन चेक फॉर दिस 7। तो 7 के केस में क्या होगा, इसका डीएफएन क्या है, डीएफएन ऑफ 7 इट इज 7, इसके चाइल्ड का लो क्या है, लो ऑफ, इनमें से दोनों में से मिनिमम है वो है ये वाला लो ऑफ 9, दैट इज 9। तो 2 वैल्यू हो गई 7 और 9। अच्छा 7 से बैकेज जा रही है 5 की तरफ, तो 5 का डीएफएन क्या हो जाएगा, डीएफएन ऑफ 5 इट इज 5। तो 3 वैल्यू हो गई हमारे पास, 9 ही लेना, यहाँ पे 8 लेंगे, लो जो है 9 का 8 है, तो 5 7 8, इनमें से मिनिमम क्या हो गया 5, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लो ऑफ नोड 7। ठीक है, 7 का हो गया, देन मूव अपवर्ड फॉर 6 का डीएफएन तो है 6 के चाइल्ड 7 का लो है 5, और कोई एज कॉन्सेप्ट नहीं है ही नहीं यहाँ पे, सो मिनिमम हो गया 5, तो 6 के लिए भी क्या हो जाएगा 5। नाउ मूव अपवर्ड फॉर 5 का डीएफएन 5 है, और इसके चाइल्ड का लो 5 है, और कोई एज नहीं जा रही है ऊपर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, इट विल बी 5। ठीक है, नाउ जस्ट चेक फॉर द 3, लास्ट वन, 5 का हो गया 3 का लो का वैल्यू है 0, इसके चाइल्ड इसका भी लो का वैल्यू है 0 मिनिमम जो है, और 3 का सॉरी लो नहीं डीएफएन 0, इसका चाइल्ड का वो 0 रूट है ये, तो मिनिमम वैल्यू क्या 0। सो इस 3 के केस में द डिस्कवरी टाइम भी 0 हो गया, लो का वैल्यू भी 0 हो गया। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द लो फॉर एवरी वर्टेक्स इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो हमने जो इस डीएफएस ट्री फाइंड आउट किया था, नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑफ द लो। अब हम क्या करेंगे, वी विल यूटिलाइज दीज वैल्यूज टू फाइंड आउट द आर्टिकुलेशन पॉइंट। so we'll check for every vertex कि हर एक वर्टेक्स के लिए this condition is true or not। तो हर एक वर्टेक्स के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू है, then all vertices will be the articulation point।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है, एंड वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो फॉर जीरो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लो ऑफ चाइल्ड ग्रेटर देन इक्वल dfn ऑफ u, ठीक है। अच्छा, तो फॉर द वैल्यू ऑफ u इक्वल 0, तो ये तो हो गया dfn ऑफ 0, dfn ऑफ 0 है 4, और 4 का कोई चाइल्ड ही नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए तो हम चेक करेंगे नहीं। एक चीज़ और है, पहली चीज़ ये तो क्लियर है हमको कि जो लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड्स के लिए तो ये लीफ नोड तो आर्टिकुलेशन पॉइंट होते ही नहीं है, तो देर इज नो नीड टू चेक फॉर द लीफ नोड, विल चेक फॉर अदर नोड, ठीक है। तो ये तो हम पहले ही क्रॉस कर देते हैं इनको। नाउ विल चेक फॉर अदर नोड, सो लो ऑफ वी विल चेक फॉर 1 हियर, तो डीएफएन ऑफ 1, 1 का डीएफएन तो हो गया 3, और 1 के चाइल्ड है 0, इसका लो हो गया 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल 3, ये कंडीशन ट्रू है 1 के लिए, so the 1 will be the articulation point. I'm circling which one is the articulation point. Now move forward here, the node 2, तो node 2 का DFN है हमारे पास 2, और node 2 का चाइल्ड है 1, इसका 1 का जो लो का वैल्यू है वो है 0, 0 greater than equal to no, condition false, so 2 will not be the articulation point. Now check for here 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो फॉर 3, अच्छा 3 रूट नोड है यहाँ पे, ठीक है। तो विजुअली देखें तो 3 हटता है यहाँ, तो ये ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर लॉजिकली चेक करते हैं इसमें। तो फॉर 3 DFN ऑफ u इज 0, और इसके लो क्या है, चाइल्ड क्या है 4, उसका लो का वैल्यू, जो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वाला लो का वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सो लो ऑफ 1 तो 0 है, अच्छा इसके लिए भी यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, और दूसरा वाला क्या है 5, जैसे ये 5 का है, उसके लिए भी कंडीशन ट्रू हो रही है, सो दिस 3 विल बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट। नाउ फॉर 4 चेक फॉर दिस, तो 4 का DFN है 1, और 4 के चाइल्ड का लो, चाइल्ड है तो उसका लो है 0, 0 greater than 1, condition false, 4 is not the articulation point. For 5, 5 का DFN है 5, और 5 के चाइल्ड का जो लो है, वो चाइल्ड है 6, उसका लो है 5, so 5 equals 5, condition true, so 5 will be the articulation point here. Now check for 6, 6 का DFN है 6, और 6 के चाइल्ड का 7 का लो का वैल्यू है 5, 5 greater than 6, no, 6 articulation point नहीं होगा। Now for 7, 7 का DFN है 7, और इसके चाइल्ड का लो, जैसे इसका देखें 8 और 9, दोनों का लो हाई है इससे, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9, इट इज ग्रेटर देन टू 7, तो कंडीशन, तो 7 विल बी द आर्टिकुलेशन पॉइंट। सो बाय यूटिलाइजिंग द प्रोसेस वी हैव फाइंड आउट, लाइक we are having 4 articulation points here, that is 1, 3, 5 and 7. Okay, so this is the whole process. In this process, first of all, we have find out for the given graph, like what is the DFS tree for that given graph. Then after finding the DFS tree, we simply add the back edges in the T if there is any back edge. After that, we will find out the value of, we will create a table for DFN and values of low. And at the end, we will find out we will check for every vertex like it is an articulation point or not. So this is the way for finding the articulation point. Any doubt to anybody in this? Okay, so this is the last point here. It is for information purpose, like what is the bi-connected component. So we have discussed the connected graph, connected component. Another term is the bi-connected component. So before going for the bi-connected component, just let's check what is the bi-connected graph. So a bi-connected graph
is a graph if it satisfies these two things. First of all, it is connected, means it is possible to reach every vertex from every other vertex by a simple path. So that will be the connected graph. ठीक है. Second one, इसको हम सिंपल वे में बोलें, then there is no articulation point in that particular graph. उसमें कोई articulation point नहीं होगा, मीन्स किसी भी वर्टेक्स को रिमूव करें तो वो ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा. ठीक है. तो ये दो पॉइंट हो गए इसमें, एक तो वो कनेक्टेड हो और दूसरा उसमें कोई articulation point नहीं हो. ठीक है. मीन्स इवन आफ्टर रिमूविंग एनी वर्टेक्स द ग्राफ रिमेन्स कनेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द ग्राफ. सो इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ देर इज नो आर्टिकुलेशन पॉइंट. मैं किसी को भी रिमूव करता हूँ यहाँ पे तो भी ये ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा. जैसे मैं 0 को करूँ तो भी नहीं होगा, 1 को करूँ तो भी नहीं होगा, मीन्स कनेक्टिविटी रहेगी उसमें. किसी भी नोड को करो ये ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा. तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज द बाई कनेक्टेड ग्राफ. तो बाई कनेक्टेड कॉम्पोनेंट क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ में से वो कॉम्पोनेंट्स जो विच आर सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बाई कनेक्टेड. तो द गिवन ग्राफ इज क्लियरली कनेक्टेड. जैसे ये वाला ग्राफ यहाँ पर है, it is clearly connected because like now trying to remove the vertices one by one and observe like removing any of the vertices does not increase the number of connected components. So the given graph is the bi-connected. ठीक है. तो what are the bi-connected components? जैसे हमारे पास सपोज ये ग्राफ है, ये भी हमने जिसको आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड आउट किए थे. ये bi-connected ग्राफ नहीं, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट द bi-connected component from this graph? So a bi-connected component of a connected undirected graph is the maximal bi-connected subgraph H of G. So by the maximal we mean that G contains no other subgraph that is both bi-connected and properly contains H. उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि जितने भी bi-connected components होंगे इस ग्राफ के अंदर वो एजेस शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे की. ठीक है. तो it is easy to verify that two bi-connected components of the same graph have no more than one vertex in common. और वो vertex कौन सा होगा? तो we can take that articulation point in that graph. So this means that no edge can be in two or more bi-connected component of the graph. Hence the bi-connected component of G partition the edges of G. Okay, so and we can find out the bi-connected component of undirected graph using some depth first spanning tree of the G. तो जैसे इस ग्राफ में बात करें तो हमको पता है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है. तो हमको इन आर्टिकुलेशन पॉइंट को यूज करते हुए इसको ऐसे डिवाइड करना है कि जो हमको कंपोनेंट्स मिले वो बाई कनेक्टेड हो. बाई कनेक्ट का मीनिंग क्या है कि वो उनमें से किसी भी वर्टेक्स को रिमूव करें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए. तो लाइक इन दिस वन, जैसे आर्टिकुलेशन पॉइंट ये है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया तो 1 0, ये एक बाइकनेक्ट का कंपोनेंट ये हो गया. ये बाइकनेक्टेड है क्योंकि 0 को हटाता हूँ तो भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि लास्ट में 1 वर्टेक्स रह जाएगा. 1 को हटाऊँ तो भी नहीं होगा. तो दिस इज द फर्स्ट. अच्छा, अब दूसरा जब आप चूज कर रहे हो तो जस्ट उसमें भी ये वाला जो आर्टिकुलेशन पॉइंट था इसको ऐड कर लेंगे. मीन्स एक आर्टिकुलेशन पॉइंट एक से ज्यादा बाइकनेक्टेड कंपोनेंट में होगा. ठीक है. सो सेकेंड वन कैन बी दिस. इसमें हमने ये आ गया. अच्छा, ये भी बाय कनेक्टेड है क्योंकि किसी भी वर्टेक्स को रिमूव करें तो भी ये कनेक्टेड फॉर्म में होगा. सेकंड वन इज दिस. नाउ लेट्स मूव फॉर थर्ड वन. वी कैन टेक थर्ड वन लाइक दिस. दिस इज द थर्ड वन. नाउ फॉर फोर्थ वन वी कैन टेक दिस वन. वी कैन गो फॉर फिफ्थ वन. अब ये आर्टिकुलेशन पॉइंट जिसमें आ रहे हैं उनको हम ले रहे हैं. आर्टिकुलेशन पॉइंट इन दोनों से कनेक्टेड है तो एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है. तो ये हो गया एक ये पहले हो गया था. क्या इसको भी ले सकते हैं? नहीं, इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें ये वाली जो एज है 5 6 ये ऑलरेडी हमारे बाई कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रही है. तो अभी इसका फाइंड आउट करने का प्रोसीजर नहीं है आप लोगों का अभी हमारे इसमें. वी विल नॉट डिस्कस दैट. बस आप जस्ट I've just discussed it only for the information purpose, like what is the bi-connected graph and what are the bi-connected components. Now we are talking about the application, then the connectivity and these things can be utilized to check either the particular network is strong or not. So
these are it these things having applications in the networking, like a computer network can be modeled as a graph where what it says are routers and edges are network connection between edges. So a router can be considered critical if it can disconnect the network for that router to fail. So it would be nice to identify which routers are critical. So we can do such an identification by solving the bi-connected component problem.